हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 30। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिटेल सॉल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्वीट पोटैटो फैमिली इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। आंसर ए पॉलीमोनियल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइपोमिया बटाटाज और स्वीट पोटैटो इज अ प्लांट विच बिलोंग्स टू द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली along with the potato family. Solanaceae is included in the order Polymoniales. Question number 2 देखते हैं। The following are some statements about leukocytes. Which of these is incorrect? WBC के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो हमारा आंसर ये है 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट इज अ ग्रेनुलोसाइट वेयर एज द लिस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट इज एन ए ग्रेनुलोसाइट। ये गलत है। और सेकेंड, द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज अ ग्रेनुलोसाइट वेयर एज द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट इज एन ए ग्रेनुलोसाइट। ये भी गलत है। आंसर थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट हो सही है। फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स में भी ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एंड 4 पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट वेयर एज द लार्जेस्ट ए ग्रेनुलोसाइट हैज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए डॉक्टर हैज ordered a test for serum bilirubin. The patient goes to a pathologist who collects his blood. The pathologist should collect this blood in a test tube containing, आंसर होगा D, no anticoagulant. For this test serum is required. Serum is the fluid formed after blood clots, hence we have to allow the blood to clot, thus no anticoagulant should be added. Next question number 4, the renin angiotensin mechanism to increase blood pressure involves organs in the following order. आंसर होगा ए किडनी, देन लीवर, देन लंग्स, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद किडनी। एक्सप्लेनेशन ये है हमारा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। आंसर सी फंजाई। दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, what floral reward does Amorphophallus particularly provide to its pollinator? Answer D, safe place to lay eggs. Amorphophallus, amorpho mishapen phallus penis, is named so because of the prominent spadix. It has the tallest flowers, about 6 feet tall. They provide a site for laying eggs for the insects that pollinate it. Question number 7, minucellular cells surrounding embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. Each of my ovule contains how many embryo? Who am I? आंसर होगा C, lemon. In citrus, the nucellus is diploid, protrude into embryo sac and develop many embryos. This phenomenon is called polyembryony. Since such seeds are formed with fertilization, they are also called apomictic seeds. Question number 8, which lupine was excavated from the tundra that germinated and flowered after a record 10,000 years? Answer D, Lupinus arcticus. This is our explanation. Pause the video and see the explanation. Question number 9, choose the correct group of plants that use entomophily as their preferred method of pollination. Answer C, Bougainvillea and Salvia. This is our explanation. Pause the video and see the explanation. Question number 10, in the development of angiosperm generally, answer A, the development of endosperm starts before the development of embryo. This is your explanation. After double fertilization in angiosperms, a diploid primary endosperm nucleus and a diploid zygote is formed. First, the primary endosperm nucleus undergoes cell division to form a diploid endosperm. This will be used as nutritive tissue for the developing embryo. Question number 11, the height of plant is controlled by 3 genes. The maximum height in the species is 24 inches, whereas the minimum height is
in the species is 6 inches. What would be the height of a plant of the same species whose genotype is capital A, small a, capital B, small c. आंसर होगा B 15 इंचेज and this is our explanation by NTA. Question number 12. With respect to blood groups, the person having blood group is definitely heterozygous. कब होगा heterozygous? आंसर होगा CAB. This is our explanation. Pause the video and see the explanation. Question number 13. Which of the following genotypes represents a pea plant with yellow pods and wrinkled seed? Answer A, small g, small r. This is our explanation. Question number 14. Which of the following examples of intragenic inheritance was discovered by Mendel? Answer D, none of these. The intragenic inheritance was discovered after Mendel's death. Intragenic or interallelic gene interaction occurs between alleles of the same genes. Example: incomplete dominance, codominance, and multiple alleles. Next, question number 15. Which of the following statements are about टेस्ट क्रॉस आर इनकरेक्ट? कौन कौन सा करेक्ट है? तो हमारा आंसर है फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, यानी कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट नॉट एवरी बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस, सही है। बाकी सारे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो गलत हैं। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16. इन एंडोल्यूशन फॉल्स द माल्टिंग ऑफ ब्लैक एंड white falls will produce? Answer C, blue falls. This is explanation. The color of Andalusian fall exhibits incomplete dominance. Black falls are homozygous dominant with the genotype capital B, capital B. White falls are homozygous recessive with the genotype small b. When they mate, all falls are heterozygous having the genotype capital B, small b, which is expressed as blue. Question number 17. Which of the following does not belong to the Paleozoic era? Answer B, Cretaceous. This is our explanation. Question number 18. Choose the pairs of organs that are result of convergent evolution. Convergent evolution के रिजल्ट में कौन कौन आया? तो 1, 2, 3 और 5 होंगे, लेकिन 4 जो हैं वो नहीं होगा। 4 है क्या? थॉर्न्स ऑफ बेगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकर बीटा जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं आएगा। इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है। H, D और AC याद रखना है। A फॉर एनालोगस, C फॉर कन्वर्जेंट और H फॉर होमोलोगस एंड D फॉर डाइवर्जेंट। तो यहाँ कन्वर्जेंट पूछ रहा है, यानी कि AC यानी एनालोगस ऑर्गन पूछ रहा है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 5, 6 जो है वो एनालोगस हो गया। सॉरी, 1, 2, 3 और 5 जो है वो एनालोगस हो गया और 4 और 6 जो है वो हमारा हो गया होमोलोगस यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ appeared ऑन अर्थ अबाउट? आंसर B, 2000 माया. दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 20. An outcross will have parents? Answer D, from same breed but with no common ancestors. Question number 21. Competitive release refers to? Answer C, expansion of distribution of a species restricted to a small area due to a competitive superior species being experimentally eliminated. This is our explanation. Question number 22. The intrinsic rate of natural increase for Indian human population according to the 2011 census was? Answer B, 0.0147. and this is our explanation. Reproductive health का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 23. The highest factor contributing to the dry weight of organism is? Answer C, कार्बन. और ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Arrange the following in descending order of their percentage of the total cost of various ecosystem service. आंसर A, सॉइल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल, उसके बाद क्लाइमेट रेगुलेशन। इसका भी एक मैंने ट्रिक बना रखा है, उसका सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%, न्यूट्रिएंट साइकिल फॉर लेस दैन 10% एंड द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन इज अबाउट 6%। यहाँ पे हम अभी बताते हैं ट्रिक इसका।
जैसे सॉइल फॉर्मेशन है तो SO स्टार्ट हो रहा है, तो S को अगर 5 बना दिया जाए तो 50% हो जाएगा, 50 SO 50 कर देंगे, ऐसा ये विजिबल हो रहा है 50। अब आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का याद करने का ट्रिक। तो न्यूट्रिएंट लास्ट में T आ रहा है, T मतलब 10, तो 10% ऐसे याद रख सकते हैं। और कोस्ट फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन है तो क्लाइमेट C से क्लाइमेट आ रहा है, और C को भी 6 बना सकते हैं, या फिर C और 6 जो है वो याद करने प्रोनाउंसिएट करने में दोनों सेम ही लग रहा है। क्लाइमेट C से स्टार्ट हो रहा है, वो 6 हो गया, ठीक है, या C को 6 बना के आप याद रख सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसमें, आप एक्सप्लेनेशन देख लिए, वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर है ए, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी सिंगल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन इज करेक्ट। आंसर डी होगा हमारा, द परसेंटेज of mammals facing the threat of extinction is less than the percentage of amphibians facing the threat of extinction। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 25, 27। बाली, जावन एंड कैस्पियन आर द सब स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर होगा बी, टाइगर, ठीक है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। रिसेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इंक्लूड्स क्वागा अफ्रीका, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रसिया एंड डोडो मॉरिशस, एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। ये NCERT में दिया हुआ है, मैंने इसका ट्रिक भी बना रखा अपने चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which part of the biosphere reserve is an area of active cooperation between reserve management and the local people, wherein activities like settlements, cropping, forestry and recreation and other economic uses continue in harmony with conservation goals। Answer C, transition area। This is our explanation by NTA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द फॉलोइंग एफर्ट्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा ए होगा, बी पहले होगा, बी उसके बाद ए, देन डी, तो सी। तो बी क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट टू सेफ गार्ड आवर वाटर रिसोर्स। उसके बाद ए आता है, इन इंडिया द एयर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एमेंडेड इंक्लूड नॉइज एज द एयर पोल्यूटेंट। उसके बाद डी आता है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया रिकमेंड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67 फॉर द हिल्स। उसके बाद आता है सी, रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकेम इफेक्टिव। इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है कि एयर प्रिवेंशन एंड सबका जो ईयर है वो याद रखने का मैंने ट्रिक बना रखा है, आप वहाँ वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का, चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। आंसर हमारा ए होगा, डायरेक्ट NCERT का डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप इसे। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द टिश्यू विच हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन। आंसर सी, स्क्वैमस एपिथेलियम बोथ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी ये जो है कोलुमनरी एपिथेलियम सिक्रीशन सही है, बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन सही है, डी सिलेटेड एपिथेलियम मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन सर्टेन डायरेक्शन सही है। Squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular body. They are found in the walls of blood vessel and air sacs of the lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary में help करता है, secretion और absorption में नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 जो हमारा बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन सही है। सेकेंड जो है ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सही है। एंड फोर्थ जो है वो द बोन मैरो फाउंड इन सम बोन्स इन द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिकोसाइट सही है। और जो थर्ड हमारा है कार्टिलेज इज टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू एक गलत है।
ए होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो एक्टिविटी लेवल्ड डी न्यूक्लियोटाइड आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल, इन विच सेल स्ट्रक्चर विल द रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट बिकम कंसनट्रेटेड। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि उसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। हियर 2 और 3 आर न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच कंटेन डीएनए दैट मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। रेस्ट ऑफ द लेवल्ड ऑर्गेनेलिज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोटाइड डीएनए, वेयर 1 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड 4 इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच टाइप ऑफ सेल कंटेन्स द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। आंसर होगा डी, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स है cells being secretory in function will have more amount of Golgi bodies and vacuoles compared to other cells from the options. Question number 35, some features of cells are listed. Which features can be found both in plant cells and prokaryotic cells? आंसर होगा 1, 2, 3 सारे हो जाएंगे। सेल वाल, सेल सरफेस मेम्ब्रेन और राइबोसोम सारे आ जाएंगे। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, the diagram shows the relationship between some biological molecules. Which row is correct for this relationship? ठीक है, ये रिलेशनशिप बताया गया है। हमारा आंसर होगा सी, जो है वो करेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि फ्रक्टोज 1 होगा फ्रक्टोज, सेकेंड होगा रिड्यूसिंग शुगर, थर्ड ग्लूकोज और फोर्थ जो होगा मोनोमर और फिफ्थ जो होगा वो एमिनो एसिड है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर रिड्यूसिंग शुगर टर्निंग बेनेडिक्ट सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टुवार्ड्स रेड। एमिनो एसिड विद ग्लूकोज एक्ट्स एज अ मोनोमर फॉर मेकिंग पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड्स रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 37, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज मोनोमर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। आंसर हमारा होगा डी, ग्लाइकोजेन, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। आंसर होगा बी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एनर्जी यील्ड, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। Question number 39, how many copies of each different DNA molecule will be found in a cell at the beginning of each of these stages of the mitotic cell cycle? हमारा आंसर हो जाएगा डी, G2 ऑफ इंटरफेज में हो जाएगा 2, प्रोफेज में 2 और साइटोकाइनेसिस में भी 2 हो जाएगा। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 लिखते हैं, फॉर सक्सेसफुल सेल रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर द क्रोमोजोम कंटेंट ऑफ ईच डॉटर सेल मस्ट बी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ मदर सेल, which stage of mitosis makes sure that each daughter cell receives one chromatid from each chromatid pair. आंसर होगा B, मेटाफेज एंड एनाफेज, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूसेस बाय द सेल्स is called B and commonly known as C. Choose the alternative that will correctly replace A, B, C and in the above statement and make it meaningful. आंसर होगा C, A होगा O2, B ब्रीदिंग और C रिस्पिरेशन। सारे पुट करके देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। हो गया, ये NCERT का डायरेक्ट लाइन है और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 42, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द लेवल्स A, B, C। आइडेंटिफाई करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, लंग्स का, ब्रीदिंग का, ये प्रोसेस का ये डायग्राम है। आंसर हमारा हो जाएगा B। A जो है एयर गोज इनसाइड हो रहा है टू लंग्स, B में क्या हो रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो रहा है, रेज्ड हो रहा है, और C जो डायफ्राम जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, and this is our explanation. During inhalation, diaphragm contracts resulting in intake of air which raises the ribs and the sternum to compensate the low volume and equalize the pressure with atmospheric pressure. Question number 43, identify the correct DNA triplet on the original DNA template that will
कोड फॉर द एमिनो एसिड हिस्टिडीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि सारा एमिनो एसिड उसका एंटीकोडोन दिया हुआ है। और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा CGTA एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। एंटीकोडोन इज अ ट्रिपलेट फाउंड ऑन tRNA which is complementary to mRNA and the mRNA is complementary to the template DNA strand used in transcription. Thus the sequence of tRNA will be same as the template DNA, only interchanging T and U. So tRNA anticodon GUA will have DNA triplet as GTA. Question number 44. From the following, identify the statements that are correct regarding tRNA. तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 1 और जो 3 है वो करेक्ट है रिगार्डिंग tRNA। तो 1 3 देख लेते हैं। 1 में कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस टेम्पोरली होल्ड tRNA अगेंस्ट mRNA, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, द स्पेसिफिसिटी ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल फॉर ग्लाइसिन एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम दैट लोड्स ग्लाइसिन आर बोथ नेसेसरी फॉर करेक्ट लोडिंग। और जो हमारा 2 जो है गलत है। द बेस सीक्वेंस इन tRNA मॉलिक्यूल्स आर द सेम एज द बेस सीक्वेंस इन द mRNA दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड, गलत है, वो सेम नहीं अपोजिट होता है। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। पॉज द वीडियो एंड सी द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। DNA पॉलीमरेज catalyzes condensation reactions between molecules during semi-conservative replication of DNA. Which 2 molecules are joined by DNA polymerase? आंसर हमारा C होगा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, दोनों में न्यूक्लियोटाइड होगा। आंसर होगा ये C आंसर, और ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 46, आधा बायो के 45 क्वेश्चन यानी कि आधा आ चुके हैं 90 क्वेश्चन में। फटाफट देखते हैं। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिया हुआ और पूछ रहा है द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर एक्स इन द बैक्टीरियल सेल इज वन रीजन व्हाई बैक्टीरिया आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, प्लाज्मिड के बारे में बता रहा है। और इन द क्लोनिवेटर PBR332 विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्स। और हमारा आंसर हो जाएगा DROP, ROP जो जीन है वो होगा। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो करेक्ट बता रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 जो है एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है इंसर्टिंग अ जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन इनटू द बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल है। बाकी सारे 3, 2, 3, 4 नहीं है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस कैटल विथ हाई मिल्क यील्ड्स, गलत है। यूजिंग मेथड्स लाइक क्रॉप रोटेशन विथ लेगुमिनस प्लांट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, गलत, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड ग्राफ्टिंग आर प्रैक्टिस टू इंश्योर हाई यील्ड, ये भी नहीं है। ये सारे प्लांट ब्रीडिंग के सारे एग्जाम्पल हैं इसमें और एनिमल ब्रीडिंग के। क्वेश्चन नंबर 48, लाइगेज एंजाइम्स, इसका रहा ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 47 का आप देख लें पॉज करके वीडियो। क्वेश्चन नंबर 48, लाइगेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू, आंसर डी, ज्वाइन ह्यूमन DNA टू प्लाज्मिड DNA, दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 49, टू प्रोड्यूस इंसुलिन वाया नॉन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन द वेक्टर्स प्लाज्मिड, आंसर ए, a segment of DNA from a human, and this is our correct explanation. Next question number 50, in some areas farmers who grow genetically modified GM corn have to make sure there is a gap between GM and non-GM crops. What is the reason for leaving a gap between the crops, आंसर बी होगा, to prevent cross pollination between GM and non-GM crops, this is our explanation. Question number 51, which of the following organisms is an odd one out with respect to mode of nutrition, आंसर सी होगा, Trypanosoma, and this is our correct explanation by NTA. Question number 52, dikaryophage is commonly seen in the members of, आंसर B, Ascomycetes and Basidiomycetes, this is our explanation by NTA. Question number 53, which of the following statement is
अबाउट लाइकेन के लिए कौन सा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और जो 3 है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, लाइकेन्स आर म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन सही है, और 3 जो है द फाइकोबायोन्ट मेंबर्स एल्गी इज एन ऑटोट्रॉफ एंड द माइकोबायोन्ट मेंबर फंजाई इज हेटरोट्रॉफ, बिल्कुल सही है। और जो गलत है 2 और 4 वो देख लेते हैं। दे ग्रो एक्सटेंसिवली इन एरियाज वेयर हाई पोल्यूशन हिंस कॉल्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर, नहीं। और 4 जो है फंजाई हेल्प्स इन एल्गी हार्वेस्ट सनलाइट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल गलत, एल्गी हेल्प करता है फंजाई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स ए बी सी एंड डी विद द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो हमारा जो आंसर है वो डी है। ब्लैंक्स ए बी सी डी पुट करके हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो ए जो है न्यूक्लियोप्रोटीन है, बी कैप्सिड, सी कैप्सोमर्स और डी जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे पुट करके देख ले सकते हैं। Viruses are nucleoproteins protected by protein coat called capsid. The protein coat is made up of assembly of a small units called the capsomeres, and it protects the internal genetic material of the viruses. और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ऑब्जर्व द बिलो डायग्राम, आइडेंटिफाई द ऑप्शन सजेस्टिंग द करेक्ट फंक्शंस ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारा ब्राउन एल्गी का है, और हम ये लेमिनेरिया का फिगर दिया हुआ है ब्राउन एल्गी का, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। इसका आंसर है सी। ए जो है वो लीफ लाइक का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फॉर प्रोड्यूसिंग फूड है, बी जो है ओ है स्टॉक फॉर सपोर्टिंग द बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी, और सी जो है द होल्ड फास्ट हेल्प्स इन द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 56, रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, आंसर होगा ए साइकस। साइकस शोज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरलवाइड रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन एंड दियर एग्जाम्पल्स। तो एस्टिवेशन उसका एग्जाम्पल बताना है, तो आंसर हमारा जाएगा डी। 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। 1 का सी मतलब कि वाल्वेट का होगा कैलोट्रोपिस, 2 का ए मतलब कि ट्विस्टेड का होगा कॉटन, और 3 का डी इम्ब्रिकेट का होगा गुलमोहर, और 4 का होगा बी यानी कि वेक्सलरी का होगा बीन। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 58, अ प्लांट विद रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स 5 sepals and petals showing vexillary estivation, monocarpellary and unilocular superior ovary, androecium consisting of 10 stamens. The above listed conditions are characteristics of which family of plants? आंसर हमारा होगा बी, फैबेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 59, in some plants the leaves are short lived and small. The petioles of such plants expand and become green. One such plant is, आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। और ये हमारा क्वेश्चन रिपीट किया हुआ पिछले भी एनटीए टेस्ट में आ चुका है। ये इससे फिर से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, द पेटियोल्स इन दिस प्लांट्स एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है मॉर्फोलॉजी एंड फाइलम प्लांट्स का। क्वेश्चन नंबर 60, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट फ्रूट इज, आंसर बी, इंडोस्पर्म। The cellular and nuclear endosperm is the edible part of the drupe fruit of coconut. Answer 61. Read the following statement about the monocot root. Which amongst them are correct? आंसर होगा 1 और 3 जो है वो करेक्ट है मोनोकॉट रूट के लिए। मतलब कि फर्स्ट जो है इट्स तो जब पॉलीआर कंडीशन ऑफ जाइलम सही है, और थर्ड जो है द मोनोकॉट रूट डज नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है, वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होते हैं। और सेकंड जो है सेंट्रल पिथ इज लेस और एब्सेंट, बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसका आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन 61 का, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अरेंज द बिलो 4 layers in the proper order starting from the outermost to the innermost layer after secondary growth has already occurred in a dicot stem। आंसर हमारा बी होगा, पहले 1 होगा, उसके बाद 3rd, 2nd, तब 4।
यानी फर्स्ट होगा फेलेम, देन थर्ड फेलोडर्म, देन सेकेंड वुड, उसके बाद 4 वैस्कुलर कैम्बियम। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अप हिल ट्रांसपोर्ट यूजिंग चैनल पंप्स। आंसर होगा ए, लोअर कंसंट्रेशन to higher concentration utilizing ATP, and this is our explanation by NTA. Question number 64, the process of nitrogen cycling by microbes involves multiple steps of oxidation and simultaneous reduction. The following reaction occurring during one such step is brought about by which bacteria? Answer होगा C, Nitrobacter. This is our explanation. Next, question number 65. According to Blackman's law of limiting factor, which of the following is the most important limiting factor in the process of photosynthesis? Answer B, CO2. And this is our explanation. Question number 66. How many cycles of cyclic and non-cyclic phosphorylation would be required in order to generate enough energy for the production of one glucose molecule? आंसर होगा बी, 6 साइक्लिक एंड 6 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द सबस्ट्रेट्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रेब साइकिल? सिट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिटिक एसिड। आंसर हमारा सी होगा। 5 इनमें से हैं क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व हैं। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। द सबस्ट्रेट्स ऑफ क्रेब साइकिल आर एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, एकोनाइट्रेट, यूजोलोएसिटेट, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, सक्सिनाइल कोए ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और जेलोएसिटिक एसिड। इट इज द सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेब साइकिल इज एज फॉलोज। क्रेब साइकिल का ये सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो एनसीईआरटी से भी ब्रॉड है। एनसीईआरटी से ज़्यादा मैटर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ग्लिसरॉल कैन इंटर द सेल एज ए सेलुलर सबस्ट्रेट? आंसर PGAL। इसका ये है एक्सप्लेनेशन। फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स फर्स्ट। इफ फैटी एसिड्स वेयर टू बी respired, they would first be degraded to acetyl coenzyme A and CoA and enter the pathway. Glycerol would enter the pathway after being converted to PGAL. ये रहा हमारा explanation. Question number 69. Read the statements about the auxins and state whether they are true or false. कौन true है कौन false बताना है। तुम्हारा आंसर है A, आंसर है B, A true, B false, C true और D भी होगा true. ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। आंसर ए जो है स्टेटमेंट, ऑक्जीन प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस, सही है। बी, ऑक्जीन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन साइटोकाइनिन लेवल्स, गलत है। सी है FW वेंट आइसोलेटेड ऑक्जीन फ्रॉम द कोलेप्टाइल ऑफ द ओट प्लांट, बिल्कुल सही। और डी जो है ऑक्जीन प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट, बिल्कुल सही है। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ग्रोथ ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? आंसर सी, एरिथमेटिक ग्रोथ। ये हमारा एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 71। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा? आंसर ए, द ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड अ वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये फाइलम कोर्डेटा के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो बी सी डी हैं बाकी सही हैं कोर्डेटा के लिए। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायोट्रिसिमेट्रिकल, दे हैव अ वेंट्रल हार्ट, बिल्कुल सही। दे आर फर्दर डिवाइडेड टू 3 सबफाइला, बिल्कुल सही है। द ऑर्गेनिम्स ऑफ द फाइलम कोर्डेटा आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय नोटोकॉर्ड ओनली, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, सेकंड a dorsal hollow nerve cord and third paired pharyngeal gill slits. Next question number 72. How many of the following organisms belong to the second largest phylum? हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो 5 जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम में होता है। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। जो लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोडा है और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो मोलस्का है। एप्पल स्नेल, पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश, स्क्वीड एंड डेविल फिश बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। और एनोफ्लिज, क्यूलेक्स, एडिस बिलोंग टू फाइलम ऑर्थोपोडा। स्टार फिश, सी अर्किन एंड सी कंकम्बर
belongs to the phylum Echinodermata. Question number 73. A 2-year-old child shows a stunted growth and slow brain development. He has thin limbs and also shows wasting of muscle. ठीक है, मसल का भी डिजनरेशन हो रहा है. दिस इज ग्रेट एडिमा एंड स्वेलिंग प्रेजेंट ओवर द बॉडी पार्ट्स. ही हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ फैट present beneath his skin. Which of the following could be a reason for the development of condition in him? ये हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है. इस हमारा आंसर हो जाएगा बी. रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय फूड लेस इन टोटल प्रोटीन्स बट हैविंग हाई कैलोरी एट अर्ली एज. और ये क्वेश्चन हमारा रिपीट भी कर चुका है इस नीट में, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 74. Select the correct statement regarding the human skeletal system from the statements given below. हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है 3, 2, 3, 4 होगा और 1 जो है वो गलत है. देयर आर टोटल 12 रिब्स इन द ह्यूमन सिस्टम. गलत है क्योंकि 12 पेयर्स रिब्स होता है 12 रिब्स नहीं, यानी टोटल 24 रिब्स होते हैं. सेकेंड कह रहा है ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स. बिल्कुल सही है. थर्ड कह रहा है द एक्सोस्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स. बिल्कुल सही. और फोर्थ द रिस्ट बोन आर 8 इन नंबर. बिल्कुल सही है. यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम. ये रहा हम एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 75. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट परमिट्स ओनली लिमिटेड मूवमेंट. आंसर होगा बी. ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. Column 1 lists the parts of the human brain and column 2 lists the functions. Match the two columns and identify the correct choice from the given. ठीक है, तो हमारे यहाँ करेक्ट चॉइस जो है वो डी है. ए का होगा पी, बी, टी, सी, एस और डी, क्यू. यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, हम यहाँ पर देख सकते हैं. सेरेब्रम जो है, द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. cerebellum, the cerebellum is a part of hind brain responsible for maintaining body posture. इसीलिए जो अल्कोहल लेते हैं उनका सेरेबलम ही फंक्शन ठीक से नहीं करता, इसलिए बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, हेल्प्स टू कंट्रोल द पिट्यूटरी. मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन रिसीव्स विजुअल एंड ऑडिटरी इनपुट्स. मेडुला ऑब्लोंगाटा इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. क्वेश्चन नंबर 77. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर ब्रेन इज करेक्ट. आंसर होगा सी. द लोब इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 78. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज. आंसर होगा ए. मेलाटोनिन. एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. इंडोक्राइन सिस्टम का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 79. द हार्मोन ए एंड बी सिक्रेटेड बाय आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कॉज हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया रिस्पेक्टिवली. आंसर होगा सी. ग्लूकागोन और इंसुलिन. एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड आइडेंटिफाई द ट्रू एंड false one. Select the correct option after referring to the given table. और हमारा आंसर होगा डी. फर्स्ट जो है फॉल्स है, फॉल्स, उसके बाद ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. फर्स्ट है स्टेटमेंट ह्यूमन बींग्स हैव अ पेयर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड इन ईच लोब ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. गलत है, फॉल्स. सेकेंड है द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी कैल्शियम आयन. आंसर है ट्रू है इसका. थर्ड पीटीएच हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन. ये गलत है, हाइपर कैल्सियमिक होता है. और 4 है पीटीएच प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी अलॉन्ग विथ टीसीटी. डीसीटी बिल्कुल सही है. और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 81. ये भी 29 में पूछा हुआ है, तो हम 81 देखते हैं. आइडेंटिफाई, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है 29 का. आइडेंटिफाई द फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्ट्स लेवल ए, बी, सी एंड डी इन गिवन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रेफरिंग द गिवन टेबल. और ये फिगर जो है एनसीईआरटी का है, ए बी सी डी के बारे में बताना है. ये जो हमारा है ए
पार्ट हैविंग अ नैरो ल्यूमेन, बी जो है पार्ट में डाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, सी जो है पार्ट क्लोजेस्ट टू द ओवरी, एंड डी जो है पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम, ई जो है वो पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम होगा। और ये हमारा रहा फुल एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, which of the following cells are responsible for the secretion of the hormone that stimulates muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice, etc. in males? आंसर होगा सी, cells situated in the interstitial space of testis। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following parts of the sperm provide energy for its motility? आंसर होगा डी, द मिडिल पीस, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द राइट वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट इन गिवन स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आंसर होगा बी, IUDs इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, which of the following process is involved in the assisted reproductive technology known as GIFT? आंसर होगा सी, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर टू द फैलोपियन ट्यूब। ये भी हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, 4 क्वेश्चन और बचे हैं बायो में, फटाफट देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच काउजेज ड्राई स्केली लीजन्स ऑन द स्किन, लेंस एंड स्काल्प ऑफ ह्यूमंस इज। आंसर होगा ए, आंसर होगा बी, फंजाई बिलोंग टू जीनस माइक्रोस्पोरम, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। द कंडीशन characterized by dry scaly lesions on the skin, lens and scalp of human is known as ringworms. It is an infectious disease caused by fungi that belong to the genus Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. It usually spreads through soil or by using a towel, cloth, etc. of infected individuals. Question number 87, which of the following is an example of a disease caused by the attack of body on its own cell? आंसर होगा सी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, which of the following drugs is capable of producing a state of euphoria or increased energy? आंसर होगा ए, coke obtained from Erythroxylum coca, and this is our explanation. Next question number 89, match the microbes given in column 1 with the column 2 and select the correct option from the codes given below। ठीक है, तो ये हमारा सारा दिया हुआ है माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर का, तो हम इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा बी होगा। 1 का सी यानी प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी का हो जाएगा प्रोड्यूस लार्ज होल्स इन स्विस चीज। सेकेंड का होगा डी यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस एंजाइम यूज एज क्लॉट बस्टर। थर्ड का होगा ए, प्रोड्यूसेस एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। एंड फोर्थ का होगा राइजोबियम का बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। मैंने इसका ट्रिक बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा हो गया सारा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ओके, इसका एक ट्रिक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का कि ट्राई साइकिल फॉर इम्यूनिटी, ट्राई फॉर ट्राइकोडर्मा, साइकिल ट्राइकोडर्मस, और फिर ट्राई साइकिल फॉर इम्यूनिटी। साइक्लोस्पोरिन जो है वो इसका एक बायोएक्टिव केमिकल है, और ट्राई साइकिल फॉर इम्यूनिटी इम्यून से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एंड आवर करेक्ट आंसर इज सी, देन ए, देन ई, बी, डी। ठीक है, सबसे पहले सी होगा, उसके बाद ए, ई, बी, डी। सी को क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देन ए है पैसेज ऑफ प्राइमरी फ्लूएंट इनटू द लार्ज एरेशन टैंक फॉर मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर। उसके बाद ई होगा ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD। उसके बाद होगा बी यानी कि पैसेज ऑफ सेकेंडरी फ्लूएंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड सेल। उसके बाद डी, रिलीज ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट
प्लांट इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। और ये रहा हमारा सारा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ओके, अब हम आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है केमिस्ट्री का, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू n equal to 4 to n equal to 1 state, the number of spectral lines emitted are, आंसर होगा C6। एटॉमिक स्टेट से क्वेश्चन है और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन इज, आंसर होगा D, 2Cu2s plus 3O2 gives 2Cu2O plus 2SO2 and this is our explanation. Next question number 3, the logarithm of the equilibrium constant of the cell reaction corresponding to the cell given standard potential दिया सेल का गिवन है, उसका आंसर होगा A 40.2 और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। E नॉट इक्वल टू 0.0591 n/n log के इक्विवेलेंट से फार्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन एज फॉलोइंग। E नॉट सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है, आंसर होगा C 1.67 वोल्ट और ये रहा हमारा फुल सॉल्यूशन बाय एक्सप्लेनेशन NTA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, among the following the surfactant that will form micelles in aqueous solution at the lowest molar concentration at ambient condition क्या होगा, आंसर होगा A और ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ AlBH4 होल थ्राइस, आंसर होगा D, ऑल 1 2 3 4 सभी सही हैं। मतलब कि Al is sp3d2 एंड B is sp3 हाइब्रिडाइज सही है। सेकेंड, इट हैज़ 6 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स सही है। 3, इट हैज़ 6 LHB बॉन्ड्स बिल्कुल सही। और 4 जो है, इट हैज़ 6 2 कार्बन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये भी बिल्कुल सही हैं। और ये रहा हमारा फुल एक्सप्लेनेशन बाय NTA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 0.1 m NaCl and 0.05 m BaCl2 solutions are separated by a semi-permeable membrane in container for this system, choose the correct answer। आंसर हमारा ये होगा, वाटर फ्लोज फ्रॉम BaCl2 solution towards NaCl solution और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। पाई भी इक्वल टू ICRT करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इन एक्वा सोल्यूशन इज, यहाँ पे ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा D, सबसे ज़्यादा आर्जिनिन, उसके बाद लाइसिन, देन ग्लाइसिन, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड है तो होगा ही ग्लाइसिन न्यूट्रल है। ठीक है, आर्जिनिन सबसे ज़्यादा एसिडिक बेसिक होगा। ये हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया NCERT से ही। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 सॉल्यूशंस ऑफ K2SO4 विद द फॉलोइंग कंसंट्रेशन 0.1 m, 0.01 m एंड 0.001 m एंड 0.0001 m आर अवेलेबल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैन हॉफ फैक्टर I कॉरस्पॉन्ड्स टू, आंसर B होगा 0.0001 m सॉल्यूशन का होगा। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन एज इलेक्ट्रोलाइट्स कैन हैव maximum degree of dissociation in most diluted solution, hence 0.0001 m solution is most diluted, so due to maximum dissociation I is maximum. Question number 10, the pH of solution prepared by mixing 2.0 ml of HCl solution of pH 3.0 and 3.0 ml NaOH of pH 10 is, आंसर होगा A 3.5 and this is our explanation by NTA. Question number 11, a photon of hard gamma radiation knocks a proton out of Mg1224 nucleus is to form, आंसर होगा C, the nuclide Na1123 and this is our explanation. Next question number 12, the number of molecules in 100 ml of 0.02 NH2SO4 is, आंसर होगा A 6.02 into 10 power 20 and this is our explanation. Next question number 13,
A KMnO4 solution can be standardized by titration against H2O3s. A 0.1156 gram sample of H2O3 require 27.08 ml of the KMnO4 aqueous for its titration. What is the molarity of the KMnO4 aqueous? A is equal to 25. आंसर हमारा हुआ A 0.0172 m and this is our explanation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 क्या होगा? आंसर होगा बी। 1 का Q मतलब कि नॉर इथिनड्रोन का होगा Q मतलब कि एंटी फर्टिलिटी। 2 का B ऑफ्लोक्सासिन का होगा P यानी एंटीबायोटिक, और इक्वेनिल का होगा R यानी कि हाइपरटेंशन में देते हैं 3 का R। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एंड दिस इज गिवन रिएक्शन पैराडीन और रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं रिएक्शन, और हमारा ये हो जाएगा आंसर सी एंड दिस इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज 1 × 10⁻12 0.01 m MgOH होल ट्वाइस विल प्रेसिपिटेट एट द लिमिटिंग pH। आंसर होगा B9। एक्सप्लेनेशन हमारा ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द रिएक्शन AB गैस गिव्स A गैस प्लस B गैस, AB is 33% dissociated at a total pressure of P, therefore P is related to Kp by one of the following option। आंसर होगा C, P equal to 8 Kp and this is the explanation of by NTA। Next question number 18, the correct order of increasing hydration energy of the following conjugate bases of oxy acids of chlorine is। आंसर होगा B, सबसे ज़्यादा होगा ClO4 माइनस का, उसके बाद ClO3 माइनस का, उसके बाद ClO2 माइनस का, उसके बाद हो जाएगा ClO माइनस का। दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, a solid is formed by two elements P and Q. The element Q forms cubic closed packing and atoms of P occupy 1/3 of tetrahedral voids. The formula of the compound, आंसर होगा B, P2Q3 and this is our explanation। Next question number 20, ली ब्लैंक प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आंसर सी होगा सोडा एस एंड पोटास। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ली ब्लैंक प्रोसेस पोटेशियम क्लोराइड ऑफ कार्नलाइट इज कन्वर्टेड टू K2SO4 विच इज देयर हीटेड विथ कोल एंड लाइम स्टोन टू गिव K2CO3 पोटास और पर्ल एश। Next question number 21, which of the following have been arranged in decreasing order of oxidation number of sulfur। आंसर होगा C, सबसे ज़्यादा H2SO5, उसके बाद H2, SO3, Cl2, उसके बाद H2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हम अरेंज कर सकते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, आंसर होगा D, ppm by weight of CaCO3 irrespective of whether it is actually present and this is our explanation। The degree of hardness of water is usually expressed in the term of ppm by weight of CaCO3 irrespective of whether it is actually present। ओके, 45 में से 22 तक आ चुके हैं। फटाफट देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। AgCl is dissolved in excess of each of NH3 Kc and Na2S2O3 the complex ions प्रोड्यूस्ड इन द ईच केस सहारा। आंसर होगा सी, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और AgCN2 होल ट्वाइस माइनस एंड AgH2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस एंड दिस इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स आर कंटेन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आंसर होगा BH3PO2 एंड दिस इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड्स इन NO3 माइनस आयन सीरीज। आंसर हमारा होगा A 1.33 एंड दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। बॉन्ड ऑर्डर टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जोड़कर हम निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड ऑफ जेनॉन हैज जीरो डायपोल मोमेंट? आंसर होगा बी HCF4 ड्यू टू लोन पेयर के कारण होगा। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ NaCl3 बाई वाटर प्रोड्यूसेस? आंसर होगा BnH4OH एंड HOCl। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ NaCl3 बाई वाटर प्रोड्यूस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सॉल्ट A+S गिव्स B with BaCl2 gives white PPT, is paramagnetic nature and contains about 55% potassium. thus A क्या होगा? आंसर होगा C KO2 and this is our explanation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, among the following the third ionization energy is highest for? आंसर होगा B बेरिलियम का होगा। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू? आंसर होगा C MgO। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन? और ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन C बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ इज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट कैरिड आउट? आंसर होगा C HgSO4/H2SO4 होगा। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। HgSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, उसके बाद H2SO4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द रिएजेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूट2 into इथेनॉल? आंसर हमारा होगा CO3/H2O गिव्स जेडिन डस्ट। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन क्या होगा? आंसर होगा B होगा सबसे ज़्यादा, थर्ड, तब 1, उसके बाद होगा सेकेंड। और ये रहा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। स्टेबिलिटी एज आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज करेगा। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप होगा, लेसर द कार्बोकैटायनिक स्टेबिलिटी होगा। सो सेकेंड इज द लीस्ट स्टेबल एंड थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? नाइलॉन 661, बूना S सेकेंड और पॉलीथीन थर्ड बताया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो आंसर होगा B सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा बूना S का, उसके बाद थर्ड का होगा, सॉरी सबसे कम होगा बूना S का, सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का होगा पॉलीथीन का, उसके सबसे ज़्यादा हो जाएगा नायलॉन 6 का, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पूछ रहा है। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द pKa1 एंड pKa2 ऑफ एन एमिनो एसिड आर 2.3 and 9.7 रिस्पेक्टिवली। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द एमिनो एसिड इज? आंसर होगा D 6.0। और हमारा एक्सप्लेनेशन होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला होता है pKa1 + pKa2/2। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Br2 और H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा D CH3Br होगा एक साथ। ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन विथ मैकेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट E इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस? ये हमारा दिया हुआ है ABCD, बहुत ही लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C। और ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं NTA में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर? आंसर हमारा हो जाएगा D सेकेंड, और जो थर्ड है वो एरोमेटिक करेक्ट करेगा और 1 और 4 नहीं करेगा। सेकेंड एंड थर्ड हैव delocalized 6 पायलोटॉन्स एंड हेंस आर एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज लीनियर विथ? आंसर होगा C नेगेटिव स्लोप विथ नॉन जीरो इंटरसेप्ट। और हमारा एक्सप्लेनेशन रहा A। ठीक है, अब आते हैं 41 में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं केमिस्ट्री में, उसके बाद देखेंगे हम लोग फिजिक्स।
फाइंड वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिया हुआ फिगर। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का कर्व है, आंसर सी है 8.12 लीटर एटीएम। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, P इक्वल टू NRT होता है तो P इक्वल टू NRT/V और वैल्यू पुट कर दिया गया। उसके बाद वर्क इक्वल टू P del V होता है तो वहाँ से हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच करना है तो हमारा आंसर ए है 1 का Q यानी कि लाइसिन का 1 निनहाइड्रीन, 2 का P यानी फरफ्यूरल का होगा 1 नैप्थोल, 3 का S यानी बेंजाइल अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और 4 का R मतलब स्टायरीन का KMnO4। ओके, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 43 में है व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ, आंसर हमारा सी हो जाएगा CU2O। और हमारा ए रहा एक्सप्लेनेशन, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CU2O। क्वेश्चन नंबर 44, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये है Br2 से ले रहे हैं तो सारे ऑर्थोमेटा पारा पे Br आ जा रहे हैं, एक्सेस Br लेने पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। मैच द कैटलिस्ट कॉलम 1 विथ कॉलम 2 है तो हमारा आंसर है B1 का 3 यानी कि V2O5 का हो जाएगा H2SO4, 2 का 1 मतलब TiCl4 AlMe3 का हो जाएगा 1 यानी पॉलीथीन, 3 का 2 PdCl2 का इथेनॉल और 4 का 4 यानी कि आयरन ऑक्साइड का NH3 कैटलिस्ट हो जाएंगे। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा पूरा केमिस्ट्री और बायो। अब हम आते हैं लास्ट हमारा सेक्शन जो है फिजिक्स पे, ठीक है। तो हमारा 60 क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज कैरी द सेम मोमेंटम विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑल हैव द सेम वेवलेंथ, सबका सेम लेंथ होगा। अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज सबका सेम वेवलेंथ होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। On the basis of dual nature of light, De Broglie suggested that the dual nature of is not only of light but each moving material particle has a dual nature, ठीक है। He assumed a wave to associated with each moving material particle which is called the matter wave. The wavelength of this wave is determined by the momentum of the particle. If P is the momentum of the particle, the wavelength of the wave associated with it, lambda equal to h/p, where h is the Planck's constant. Since it is given that alpha, beta and gamma rays carry the same momentum, so they will have the same wavelength. क्वेश्चन में से मोमेंटम दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, the voltage applied to the Coolidge X-ray tube is increased by 25%. As a result, the short wavelength limit of continuous X-ray spectrum shifted by del lambda. The initial voltage applied to the tube क्या होगा, आंसर होगा B HC/5 E del lambda। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, हाफ mv² मैक्स इक्वल टू EV इक्वल टू SC/λ से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a non-uniform thin rod of length L is placed along the x-axis such that one of its end is at the origin. The linear mass density of the rod is lambda equal to lambda naught x. Find the distance of the distance of the center of mass of the rod from the origin, आंसर होगा B 2L/3। और ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R फ्रॉम इट्स सेंटर क्या होगा, आंसर ये होगा R/2, डायरेक्ट याद रखने का है। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन ऑफ मास 0.3 kg अटैच टू 1.5 m लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हील्ड यानी कि बांध जाता है राउंड द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, आंसर होगा C 7.2 न्यूटन।
और हमारा ये हो गया T = mv² से हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शो दियर प्रॉपर्टीज ड्यू टू, आंसर होगा सी, पार्शियली फील्ड इनर सब सेल्स। पार्शियली फील्ड इनर सब सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सच सब्सटेंसेज। Question number 7. For a cell, the terminal potential difference is 2.2 volt. When the circuit is open and is reduced to 1.8 volt, then the cell is connected to a resistance R equal to 5 ohm. Determine the internal resistance of cell. आंसर होगा A 10/9 ohm और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ़ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड देन द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नल पॉइंट होगा बी, आंसर इंक्रीज करेगा। और यहाँ ये एक्सप्लेनेशन रहा, एज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीजेज द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट क्या होगा? ये होगा आंसर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एसी सर्किट इज गिवन बाय Xc = 1/ωc ओम, where C is the capacitance of the capacitor and omega is equal to 2πn, n is the frequency and AC source। ये हमारा अल्टरनेटिव कटिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, a solid metal cube of edge length 2 cm is moving in the positive y direction at a constant speed of 6 meter per second. There is a uniform magnetic field of 0.1 Tesla in the positive z direction. The potential difference between the two faces of the cube perpendicular to the x axis is, आंसर होगा हमारा ये होगा 12 मिलीवोल्ट। और ये रहा हमारा एक्सप्रेशन E = BVL से वैल्यू पुट करके हम बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चार्जेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए इन द इक्विलिब्रियम, द रेशियो Q1/Q2 क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा B√2। और ये रहा हमारा फुल एक्सप्लेनेशन बाय NTA। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 होगा कहाँ? आंसर ए होगा 2A फ्रॉम 4Q। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज, एज्यूम द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर। आंसर ए होगा 0.99 ग्राम। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज गिवन बाय G' = G/1 + h/re का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.99 G। द रेशियो ऑफ द रेडियाई, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द प्लैनेट्स P1 एंड P2 is A. The ratio of their acceleration due to gravity is B. The ratio of the escape velocity from them will be, आंसर होगा B√AB। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, एपी ग्रेविटेशन क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15, the rod P and Q of the same length and same diameter having thermal conductivity in the ratio 2:3 are joined end to end if the temperature at one end of P is 100 degrees Celsius and at one end of the Q is 0 degrees Celsius, then the temperature of the interface is, आंसर होगा A 40 डिग्री सेल्सियस। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 mole of a monoatomic gas behaving as per Pv = nRT at 27 degrees Celsius is subjected to reversible adiabatic compression until the final temperature is 327 degrees Celsius. If the initial pressure was 1 atm, then the value of ln P final is given। ln2 जो है log ln2 का वैल्यू 0.7 है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, आइसोट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17, अ कार्नोट इंजन हैज़ द सेम एफिशिएंसी बिटवीन 100 केल्विन एंड 500 केल्विन, सेकेंड T केल्विन एंड 900 केल्विन। द वैल्यू ऑफ T क्या होगा? आंसर होगा A 180 केल्विन। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टेम्परेचर ऑफ 5 moles ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 80 जूल, द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होगा इन जूल पर केल्विन में? आंसर होगा B4 और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ थिन प्लास्टिक रिंग ऑफ रेडियस R carries a charge Q uniformly spread over the entire ring. The ring is rotating with angular velocity omega about its axis. The magnetic induction at the center of the ring क्या होगा? आंसर होगा C म्यू नॉट Q ओमेगा बाई 4 पाई R। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ड्यू टू द चार्ज Q मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ B सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R इक्वल टू म्यू नॉट पाई QF बाई 2R इक्वल टू म्यू नॉट Q ओमेगा बाई 4 पाई R। क्वेश्चन नंबर 20, a closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field if the magnetic forces on segments PSS are RQ and RQ are F1 F2 and F3 दिया हुआ है respectively and are in the plane of the paper along the direction shown. The force on the segment QP क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे D F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेट फोर्स ऑन करेंट कैरिंग क्लोज लूप इज 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बॉडी मूव्स विद अ स्पीड V1 फॉर डिस्टेंस L एंड देन विथ अ स्पीड V2 फॉर डिस्टेंस 2L। द एवरेज स्पीड फॉर द मोशन इज, आंसर होगा C 3V1 V2 बाई 2V1 प्लस V2। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रैम कार। द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द स्पीड ऑफ द कार चेंजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 km/h टू 0 in 5 seconds. The angle by which the ball deviates from the vertical is G दिया हुआ है 10 और आंसर हो जाएगा C tan इनवर्स 1/5। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ मास M is suspended by a rope from rigid support at A as shown in the figure. Another rope is tied at the end B and is pulled horizontally with a force F. If the rope AB makes an angle theta with the vertical, then the tension in the string AB is, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा BF बाई साइन थीटा। और ये रहा फुल एक्सप्लेनेशन बाई NTA। क्वेश्चन नंबर 24, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर W, X, Y and Z are 4 nuclei indicated on the curve. The process that would release energy, कौन सा प्रोसेस रिलीज करेगा? आंसर होगा हमारा C W gives to Y। और ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, an isotope decays to 1/16 of the mass in 1 hour. What is the half life period of the isotope? आंसर A 15 मिनट। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26, टू बॉडीज A and B of equal mass are suspended from two separate massless springs of constant K1 and K2 respectively. If the bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of the amplitude of A to that of B is, आंसर होगा B K2 बाई K1 का होल अंडर रूट। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। भी मैक्स होता है A ओमेगा होता है, तो यहाँ से हम ओमेगा A इक्वल टू ओमेगा B A B कर सके बना सकते हैं। ऐसे का क्वेश्चन है। 27, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन y1 इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एंड y2 इक्वल टू 0.1 कॉस 100 पाई टी। द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इज, आंसर होगा C माइनस पाई बाई 6। ये साइन ओमेगा 2 टी प्लस थीटा से हम निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, ऐसे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, when a metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential is 5V0. When the same surface is illuminated with the light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V0. The work function of the metallic surface क्या होगा? आंसर होगा A AC by 6 lambda। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन बाय NTA।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लगभग हम 45 में 29 तक आ चुके हैं, लगभग आधा और बचा हुआ है फिजिक्स में, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। 29 का देखते हैं हम। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट लाइज इन। आंसर होगा ए अल्ट्रा वायलेट रीजन, और ए हमारा होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वाटर राइजेज इन अ वर्टिकल कैपिलरी tube up to a height of 2.0 centimeter. If the tube is inclined at an angle of 60 degree with the vertical, then up to what length the water will rise in the tube? आंसर होगा बी 4 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। टर्मिनल स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन अ विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन द सेम लिक्विड क्या होगा? आंसर होगा ए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हमारा रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 32। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट सम एंगल, देयर आर 5 इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स। आंसर होगा ए 60 डिग्री, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, जरूर याद रखें, पिछले टेस्ट में भी आया था। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप टेस्ट दे चुके हैं या मेरा वीडियो देख चुके हैं तो ये किस टेस्ट का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज़रूर बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। अ स्टूडेंट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन 1/m प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट पोजिशन यू एज शोन इन द फिगर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा C/B, और ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। 1/v - 1/u = 1/f से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। A bullet of mass M hits a block of mass M dash. The transfer of energy is maximum when? आंसर होगा ए M dash = M, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। If M = M dash, the bullet will transfer the whole of its velocity and consequently 100% of its kinetic energy to block and will itself come to rest as per the theory of collision. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A thin uniform circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to the plane with an angular velocity omega. Another disk of same dimensions but of mass 1/4 m is placed gently on the first disk coaxially. The angular velocity of the system होगा आंसर बी 4/5 ओमेगा, और ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाई NTA। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अ सिलिकॉन डायोड हैज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट इफ एन इनपुट वोल्टेज गिवन बाय 2 sin pi t इज सप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग दिस डायोड। द रेक्टिफाइड आउटपुट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ क्या होगा? आंसर सी 1.3 वोल्ट, और ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। द पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज P = पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज माइनस बैरियर वोल्टेज, यहाँ से हमारा 1.3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द आउटपुट ए व्हेन ऑल 3 इनपुट्स आर फर्स्ट हाई एंड देन लो रिस्पेक्टिवली बी। आंसर हमारा सी होगा 1 और 0 होगा, और उसके बाद ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इन द फॉलोइंग सर्किट्स ऑफ PN जंक्शन डायोड्स D1 D2 एंड D3 आर आइडियल, देन आई क्या होगा? आंसर होगा ए E/R। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव an RMS velocity of 200 meter per second at 27 degrees Celsius and pressure 1 atm. When the temperature is 127 degrees Celsius and pressure is 2 atm, the RMS velocity in meter per second will be क्या होगा? आंसर होगा C 400/√3, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 500 मीटर। The rise in temperature of water at the bottom if the whole of the energy remains in the water will be। specific heat of water दिया हुआ है C = 4.2 kJ/kg होगा, और आंसर होगा हमारा B 1.16 डिग्री सेल्सियस,
और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी mgh, दिस इज यूज्ड इन हीटिंग अप द वाटर, यानी कि लॉस इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन हीट एनर्जी में हो जाएगा कन्वर्ट। हेंस वी हैव mgh इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा इक्वल टू GH/c हो जाएगा। और ये हमारा रहा फुल एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं फिजिक्स के, फटाफट देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय f इक्वल टू cmx_ky, where c इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ x एंड y क्या होगा? आंसर होगा b -1/2 और 1/2। डायमेंशनलेस क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं। Question number 42. The first diffraction minimum due to single slit diffraction is at an angle theta for a light of wavelength 5000 angstrom. If the width of the slit is 1 × 10⁻⁴ cm, then the value of theta क्या होगा? आंसर होगा a 30 डिग्री। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन x इक्वल टू d λ/d से। Question number 43. A clear sheet of Polaroid is placed on the top of similar sheet so that their axes make an angle sin inverse 3/5 which with each other. The ratio of intensity of the emergent light to the that of unpolarized incident light will be, आंसर होगा d 8:25। और ये रहा हमारा फुल एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट वन। If one velocity of galaxy relative to Earth is 1.2 into 10⁶ meter per second square, then percent increase in wavelength of light from galaxy as compared to the similar source of on Earth will be, आंसर होगा b 0.4%। और ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट 30 इज द 45 द Question number 45. The displacement x of a body of mass 1 kg on a horizontal smooth surface as a function of time t is given by x equal to t to the power 4/4. The work done in the first second is, आंसर होगा b 1/2 जूल। और ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन v इक्वल टू dx/dt 1/4 × 4t⁵ यहाँ पे हमारा 1/2 आ जाएगा। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सारा क्वेश्चन और उसके आंसर थोड़ा मोड़ा हम लोग देख लिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ आप वीडियो पॉज करके सारा देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ऐसे ही देखकर मत जाएं प्लीज़। और कमेंट भी कुछ ज़रूर करें, कुछ सजेशन दें। और अपने फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर करें, यही आपका हेल्प होगा। और वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।